So KVPY paper 2018. Question number 1. The number of pairs A comma B of positive real number which is satisfying A की power 4 plus B की power 4 is less than 1 and your A square plus B square is greater than 1 is option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is more than 2. So guys, here option D is the correct answer which is more than 2. So let's begin with the question. So first of all देखते हैं हम लोग कि गिवन कंडीशंस हमें क्या दे रखी है. तो हम कंडीशंस पे चलते हैं. सबसे पहले देखिए कंडीशंस हमें क्या दे रखी है. सबसे पहले मुझे दे रखा है यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 which is less than 1. This is my equation number 1. Okay. Now another equation is what? A square plus b square which is greater than 1. This is my another equation 2. Okay, or I can write it as minus का a square minus का b square which is less than minus 1. लिखा जा सकता है ऐसे. So now this will be my equation number 3. ठीक है. Now if I add 1 plus 3, if I add my equation 1 plus 3, so what should I get here? I'll get here a4 minus of a square plus b4 minus of b square which is less than 0 because 1 minus 1 is what? 0. Or you can write it as this will be equal to what? This will be equal to a square minus 1 by 2 का whole square plus, or you can write it as b square minus 1 by 2 whole square minus 1 by 4 minus 1 by 4. Fine, which is less than 0. Or you can write it as in the next step, what should I write? A square minus 1 by 2 का whole square plus b square minus 1 by 2 का whole square which is less than 1 by 2. Now guys, after that I can write it as that your a square minus b square. Fine. What should I write over here? That your a square comma b square. This order pair lies inside the circle, lies inside the circle with center, with your center is what? 1 by 2 comma 1 by 2. This is the center and your radius is what? This radius is equal to 1 by root 2. This is your radius. Okay. So here we can conclude that it has more than 2 solutions. So option D is the correct answer. Question number 2. The number of real roots of the polynomial equation, your equation is what? X की power 4 minus x square plus 2x minus 1 is equals to 0 is. Option A is 0, option B is 2, option C is 3 and option D is 4. So guys, here option B is the correct answer which is 2. So let's begin with the question. सबसे पहले given conditions पे चलते हैं. Given conditions में हमें equation दे रखी है. Equation क्या दे रखी है guys? मुझे equation यहाँ पे given है x की power 4 minus x square plus 2x minus 1 equals to 0. ये equation मुझे given है. Now what should I do? यहाँ पर अगर मैं x4 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये सारी इक्वेशंस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी. तो व्हाट शुड आई गेट? यहाँ पे मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x यहाँ पे प्लस के बराबर हो जाएगा. और मैं क्या लिख सकती हूँ x4 को? x4 विल बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर. इसे ऐसा लिखा जा सकता है दोस्तों. और मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस विल बी इक्वल टू एज योर एक्स स्क्वायर. फाइन. एक्स स्क्वायर इज व्हाट? योर एक्स माइनस 1 और एक फैक्टर क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज व्हाट? योर 1 माइनस एक्स.
ये दो फैक्टर्स की दो इक्वेशन आ जाएगी और मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे d लेस देन 0 जाएगा। d लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मीन्स कोई भी रूट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, नो रूट्स वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पर मेरा जो d है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो आपके दो रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे। दो रूट्स मीन्स अल्फा और बीटा दो रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2। Question number 3. Suppose the sum of first m terms of an AP is n and the sum of its first n term is m, where m is not equal to n, then the sum of the first m plus n terms of the AP is given by. Option A is 1 minus mn, option B is mn minus 5, option C is minus of bracket m plus n, option D is what? M plus n. So guys, here option C is the correct answer, which is minus of bracket in bracket m plus n. So let's begin with the question and start with the given conditions. So with the given formula, and given formula is what? Your sum can be written as what? Okay, so you can write it as your sum Sm is equal to what? Your Sm is equal to your m by 2 in bracket, this is 2a plus m minus 1 into d. This is the formula for sum which is equal to your n. Okay, so this is your equation number 1. Now, or you can write it as this will be equal to what? This will be equal to your n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, which is equal to your n. This is equal to your m, and this is your equation 2. So I have two conditions here, Sm or Sn. Now if we subtract this equation 1 minus equation number 2. So what should I get here? 1 by 2 I'll take it as common, and what should I get here? 2a in bracket, what should I write? M minus n plus d, or what should I write? M square minus n square minus m plus n. Bracket close, or I can write it as n minus this m. Okay, after that फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यूज गाइज। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -1 के इक्वल हो जाएगी। और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ गाइज, यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है कि m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट आई कैन राइट इट एज 2a प्लस योर m प्लस n minus 1 into d, which is equal to what? Which is equal to your minus का m plus n. ऐसा मैं लिख सकती हूँ। तो जो मेरा सम होगा m plus n का, वो किसके बराबर हो जाएगा गाइज? यहाँ पर वो मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ n ब्रैकेट m plus n के। सो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी आ रहा है वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following two statements. Statement 1 says, any pair of consistent linear equation in two variables must have a unique solution. And conclusion or statement 2 is what? There do not exist two consecutive integers, the sum of whose square is 365. Then option A is both first and second are true. Option B is both first and second are false. Option C is first is true and the second is false. Option D is first is false and second is true. So guys, here option B is the correct answer, which is both first and second are false. So let's just have a look with the question कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन कंडीशंस को हम चेक कर लेते हैं एक बार कि जो हमारी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है डू आल्सो हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही दे रखी है, जो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस है इसमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन जो बात कही गई है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी।
अगर स्टेटमेंट सेकंड की मैं बात करूं यहाँ पर, तो स्टेटमेंट सेकंड की जब मैं बात करूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे गाइस, स्टेटमेंट सेकंड के लिए मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो के स्क्वायर है, ठीक है, माई के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर 365, because the question or the statement says that there do not exist two consecutive integer. If one consecutive integer is k, then another consecutive integer, then another integer be k plus 1, and the square of or the sum of whose square is 365. So this is my condition. This is condition for your second statement. Okay, what should I write here? This can be written as 2k square plus 2k plus 1, which is equal to what? Which is equal to your 365. After that, what should I write? 2k square plus 2k minus of 364, which is equal to 0. Or if I find the value of this d will be equals to what? Your b square minus 4ac, and this can be written as 4 minus 4 into 2 in bracket minus 364. Okay. Or if I solve the value of this d will be equal to what? 54. Okay. Now I have to find the value of this k. K will be equal to what? This will be equal to minus of this a plus minus under root this d. D is what? Your under root d upon this 2a. This is the formula. This is minus b plus minus under root d upon this 2a, which is equal to what? You can write it as minus 2 under root d. In place of this under root d, you have to write this 54 over here upon value of a is what? Your value of a is 2, so this will be equal to 2 into 2, 4 हो जाएगा. ना यहाँ से जो मेरी k की वैल्यू आएगी गाइस, k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास जो k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ से, एक आ जाएगी माइनस का 14, ठीक है, और एक k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 13. दो वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ मेरे जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. अगर एक माइनस 14 है तो दूसरा माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो एक 14 है तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा. सो जो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरा. बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर फॉल्स. Question number 5. The number of polynomials px with integer coefficient such that the curve y equals to px passes through 2, 2 and 4, 5 is. Option A is 0, option B 1, option C more than 1 but finite, option D infinite. So guys, here answer is option number A, which is 0. So let's begin with the question. Question स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसकी गिवन कंडीशंस को देखो. गिवन कंडीशंस में हमें क्या दे रखा है? y इज इक्वल्स टू px दे रखा है. मींस y इज इक्वल्स टू px एक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है. y इज इक्वल्स टू px, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है. एंड इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ? an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1. फाइन. और इसे क्या लिखा जा सकता है? प्लस a0. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं. 2, 2 से पास हो रहा है और 4, 5 से पास हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर 2, 2 से पास कराऊंगी तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और x जहां जा रहा है उसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा an x की जगह 2 की पावर n प्लस an माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 प्लस आगे इसको और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a1 प्लस a0. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब हमारा 4, 5 से पास हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और x की वैल्यू हो जाएगी 4. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा an, ठीक है, 4n प्लस an माइनस 1 4n माइनस 1 प्लस कहां तक जाएगा? ये 4a1 प्लस ये हो जाएगा a0. ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो. अब ये वाली इक्वेशन को आप मान लो इक्वेशन 1, ये वाली आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2. नाउ यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो व्हाट शुड आई गेट हियर? यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे 5 में से 2 गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये an मेरा कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बच जाएगा? 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n. ठीक है, प्लस an माइनस 1 अंदर क्या बच जाएगा? 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1.
प्लस कहाँ तक चलेगा ये, अप टू 2a1 तक, ठीक है, ये वैल्यू 2a1 तक चलेगी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है ऑड वैल्यू, और यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं यानी जो आपके सारे कोफिशिएंट्स है वो क्या है, यहाँ पे इवन आ रहे हैं, ये सारा इवन आ रहा है यहाँ पे, और ये फंक्शन आपका ये वैल्यू क्या आ रही है, ऑड आ रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऐसी कोई भी जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं होगी। व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 0। Question number 6. The median of all 4-digit numbers that are divisible by 7 is option A 5497, option B 5498.5, option C 5499.5 and option D 5490. So guys, here option B is the correct answer, which is 5498.5. So let's begin with the question. So सबसे पहले देखते हैं कि given conditions क्या दे रखी है हमें। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 4 डिजिट नंबर का मीडियन हमें फाइंड करना है। तो 4 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1000 से स्टार्ट होते हैं। तो जो नंबर है वो डिविजिबल भी होना चाहिए 7 से। दिस इज आवर कंडीशन कि वो नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा यहाँ पे, वो नंबर मेरा हो जाएगा गाइज 1001। नेक्स्ट नंबर इसमें 7 ऐड कर दो 1008, और जो लास्ट नंबर होगा जो मेरा 7 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा 999 और 6। तो इस तरीके से ये एक एपी फॉर्म हो गई है हमारी, ठीक है। तो एपी का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो ए एन की वैल्यू है मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स निकालने का। यहाँ पर देखिए ए एन क्या हो जाएगा 9996, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है विच इज इक्वल टू व्हाट 1001, एन यहाँ पर 7 दे रखा है, एन आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो एन माइनस 1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको 7 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1286 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो मुझे मीडियन निकालना है 4 डिजिट नंबर्स का। तो मीडियन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा कि मैं यहाँ की जो 643 टर्म है, ये जो टर्म है प्लस मेरी जो 644th टर्म है, ये दोनों की जो टर्म है इसका एवरेज ले लूंगी मैं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका एवरेज किस तरीके से आएगा, ये फर्स्ट वैल्यू है 1001 प्लस 642 इंटू 7 प्लस 644 टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ 1001, ठीक है। ये आपकी ए एन वाली टर्म ही है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस यहाँ पे 643 इंटू डी, 643 इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करने पे आ जाएगा 2002 प्लस 4494, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4501 डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, फर्दर सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा मेरा 45498.5 विच इज योर ऑप्शन बी। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 5498.5। तो मेरी मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 5498.5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a solid hemisphere is attached to the top of a cylinder। यहाँ पे देखिए एक solid hemisphere है जो एक सिलेंडर पे अटैच है। ये सपोज ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और इस पे एक solid hemisphere अटैच है having the same radii। जो सिलेंडर का रेडियाई है वही हमारे हेमिस्फीयर का रेडियाई हो जाएगा। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर वो डबल, तो अगर मेरी हाइट जो है सिलेंडर की वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डबल हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेडियाई वहां पर सेम रहता है, double, keeping both the radii fixed, then the volume of the entire system would have increased by 50%। पहले हमारा वॉल्यूम क्या था गाइस, पहले हमारा वॉल्यूम था v, नाउ अब मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3v/2, ठीक है। वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो गया 50% से। बाय व्हाट परसेंटेज वुड द वॉल्यूम हैव बीन इंक्रीज इफ द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फीयर इन द सिलेंडर वर डबल कीपिंग द हाइट फिक्स्ड। नाउ ऑप्शन ए इज 300%, ऑप्शन बी इज 400%,
Option C is 500% and option D is 600%. So let's begin with the question. ये डायग्राम हमें इस तरीके से बनाना होगा कि सिलेंडर हमें दे रखा है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, रेडिया दोनों का सेम रखा है, यहाँ पे h हाइट हो गई, इसका वॉल्यूम v हो गया। सेकेंड केस में हमें रेडियाई तो सेम रखना है बट यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और वॉल्यूम 50% इंक्रीज कर जाएगा, तो वॉल्यूम 50% इंक्रीज करेगा, दिस विल बी इक्वल टू 3b/2। फाइन। सो नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ v इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई कैपिटल R स्क्वायर h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई R कैपिटल Q। ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए जो मेरा वॉल्यूम है, इसको इक्वेशन 1 डाल दूंगी। इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी मेरी गाइस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 3v/2, ठीक है, वॉल्यूम ये हो जाएगा, और जो मेरा सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इन ब्रैकेट 2h, ठीक है, प्लस सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ये सेम रहेगा पाई R क्यूब, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दूं फर्स्ट में से, तो मेरे पास गाइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू v/2, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास पाई R स्क्वायर h, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच जाएगी। तो मेरा नया वॉल्यूम क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ आपको। नया वॉल्यूम हमारा बन जाएगा v डैश, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई। नाउ अब मेरा जो रेडियाई है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, हाइट सेम रहेगी, प्लस 2/3 पाई R अगेन डबल हो जाएगा, तो 2R का क्यूब, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट केस के लिए हो गया। सिमिलरली सेकंड केस के लिए मेरा नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R क्या हो जाएगा आपके पास कैपिटल R, और 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, 2R का स्क्वायर अपॉन h प्लस 2/3 पाई, ये भी आपका सेम हो जाएगा 2R क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं मैं 4R स्क्वायर पाई h प्लस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2/3 पाई R क्यूब इनटू 8, ठीक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ मेरा जो वॉल्यूम है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये ट्वाइस ऑफ v है और ये मेरा 4 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। इन टोटल अगर मैं करूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6v हो जाएगा। तो परसेंटेज अगर चेंज मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दी वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 6v अभी मेरा निकला है न्यू वाला वॉल्यूम, और माइनस मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था v था अपॉन माई ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100, एंड व्हेन आई सॉल्व दिस वैल्यू तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 500%। सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 500%, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, consider a triangle PQR in which the relation QR square plus PR square is equals to 5 PQ square. Hold, let G be the point of intersections of median PM and QN, then your angle QGM is always option A less than 45 degree, option B obtuse, option C right angle, and option D acute and larger than 45 degree. So guys, here option C is the correct answer, which is right angle. Fine, option C is your correct answer. Now let's begin with the solution part. तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्राइंगल PQR में हमें क्या क्या कंडीशंस दे रखी है, उस अकॉर्डिंग हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, सपोज यहाँ पर देखिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर मुझे इस तरीके से मीडियन हो जाएगा आपका, ये आपका ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है, ये दूसरा आपका मीडियन हो जाएगा, ये आपका एन हो गया, ठीक है,
और ये आपका G हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको G बोल देंगे। ये आपका P हो जाएगा विच इज x कॉमा y, ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। ये Q पॉइंट हो जाएगा विच इज a कॉमा 0। ये आपका M पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन पे है इसीलिए इसका 0 कॉमा 0 पॉइंट आ जाएगा। और ये आपका R पॉइंट होगा, R पे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस a कॉमा 0। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल हमने बना लिया है। इसके बाद हम एक कंडीशन देखेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि और पी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। नाउ क्यू आर की जगह में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए डायग्राम से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। क्यू आर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए क्यू से आर के डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, ये a प्लस ए 2 हो जाएगा, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से पी आर की बात करूं तो पी आर हमारा ये हो जाएगा, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो जाएगा x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरा y, और ये 0 दे रखा है तो सिर्फ y माइनस 0 यानी y का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू पी क्यू स्क्वायर, देखिए पी क्यू की जगह में क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू मेरा ये रहा पॉइंट, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट आ जाएगा ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, और y पॉइंट के लिए सिंपल हो जाएगा y माइनस 0 यानी सिंपल y स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगी गाइस तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू, मुझे मेरी y, ये जो इक्वेशन है अगर मैं इसको, ये जो पार्ट है अगर मैं इसको RHS पे लेके चली जाऊं तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, y स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3ax विच इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू मेरी इस अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा जो G पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर जो दे रखा है, जो मीडियन मेरे को दे रखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो G पॉइंट है वो क्या हो जाएगा गाइस, वो इक्वल हो जाएगा x/3 कॉमा y/3 के। ये मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे G के, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे कि मेरा जो MGM मीडियन हो जाएगा GM का, वो क्या लिख सकते हो मैं उसको, मेरी जो MGM की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू व्हाट, वो हो जाएगी y/3 अपॉन x/3 विच इज इक्वल टू y अपॉन x, वो y/x के इक्वल हो जाएगी। और जो मेरा मीडियन है QG का वो कितना हो जाएगा, मीडियन ऑफ QG विच इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरा हो जाएगा y/3, तो एज इट इज पॉइंट रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा x/3, इसमें से माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दोगे विच इज इक्वल टू योर y अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन x माइनस 3a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों ही मीडियंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखिए इसको आफ्टर मल्टीप्लाइंग, देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे मेरे MGM को मल्टीप्लाई किया मेरे मीडियन ऑफ QG के साथ, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 3ax विच इज ऑलरेडी ये इक्वल किसके दे रखा है, -1 के, ठीक है। ये अगर इस तरीके से दे रखा है तो मेरा जो एंगल QGM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो योर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर विच इज अ राइट एंगल। Question number 9. Let ABC be the side length of a triangle and LMN be the length of its median. Let K equals to L plus M plus N upon A plus B plus C. Then, as A, B, C vary, K can assume every value in the interval. Option A is what? 1/4 comma 2/3. Option B is what? 1/2 comma 4/5. Option C 3/4 comma 1. Option D is 4/5 comma 5/4. So here option C is the correct answer which is 3/4 comma 1. So let's begin with the question. सबसे पहले हम given condition पे चलते हैं कि हमारी given condition क्या होगी। यहाँ पे जो question है उसके according हमें condition दे रखी है कि जो मेरा K है, value of K which is equal to what, which is equal to your L plus M plus N upon A plus B plus C।
ये कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। और ABC साइड लेंथ दे रखी है ट्राइंगल की, और एलिमेंट जो दे रखे है वो लेंथ ऑफ इट्स मीडियन है। तो फॉर एनी ट्राइंगल एक कंडीशन हमें पता है, यहाँ पे हमें क्या लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 3/4 A plus B plus C which is less than your L plus M plus N which is less than your A plus B plus C, ठीक है। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, L plus M plus N अपॉन A plus B plus C which is belongs to your less than, हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 3/4, ये A plus B plus C से A plus B plus C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पॉइंट्स जो है एक 3/4 आ जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दे रखा है वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, let x0 y0 be fixed real numbers such that your x not square plus y not square greater than 1 if x comma y are arbitrary real numbers such that your x square plus y square is less than or equal to 1, then the minimum value of x minus x naught का whole square plus y minus y naught का whole square is what? Option A is in bracket under root x square x naught square plus y naught square minus 1 का whole square. Option B x naught square plus y naught square minus 1. Option C mod value of x naught plus mod of y naught minus 1 का whole square. And option D is what? Mod x naught plus mod y naught का whole square minus 1. So guys, here option A is the correct answer, which is in bracket under root x naught square plus y naught square minus 1 का whole square. So let's begin with the question and सबसे पहले एक कंडीशन पे चलते हैं कि हमें एक सर्कल दे रखा है, तो उस सर्कल को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्कल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा सपोज करो कि एक सर्कल है, दिस विल बी अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा सेंटर पॉइंट सी है और आपको पता है ये पॉइंट बाहर कहीं लाई करेगा, विच इज पॉइंट पी और एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये बाहर कहीं लाई करेगा। तो इस सर्कल पे आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको सपोज मैंने क्यू मान लिया, जो कि हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, और ये सेंटर आपका आपको पता है ये 0,0 पे हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी अंदर की, ये जो इसका रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपको पता है कि जो एक्स नॉट वाई नॉट है ये आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका एक्स वाई है वो इनसाइड द सर्कल है, और ऑन द सर्कल जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आपका जो सीपी पॉइंट है पूरा, which is equal to what, this CP minus 1 का whole square। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, which can be written as under root, ये हो जाएगा मेरा x नॉट का स्क्वायर प्लस y नॉट का स्क्वायर माइनस 1 का इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, और ये -1 ऑलरेडी था तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, let PQR be a triangle in which PQ equals to 3 from the vertex R, draw the altitude RS to meet PQ at S. Assume that your RS is equals to √3 and your PS is equals to QR. Then PR will be equal to what? Option A √5, option B √6, option C √7, option D √8. So guys, here answer C is correct, which is √7. So let's begin with the question. सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, PQR एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें PQ हमें 3 दे रखा है, ठीक है। सो हम एक पॉइंट पे देखिए किस तरीके से हम एक
प्लेन पे ड्रॉ कर लेंगे एक ट्राइंगल को इस तरीके से। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू आर हमें ड्रॉ करना है, जिसमें पी क्यू हमें 3 दे रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल बना लिया गाइज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, ये आपका पॉइंट पी हो जाएगा विच इज ओरिजिन पे है तो 0,0 हो जाएगा। पी से क्यू के डिस्टेंस, यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड भी है एस, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। तो आपका जो आर पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। आर इज योर ए कॉमा बी एंड योर क्यू इज योर व्हाट 3,0 और योर एस इज योर व्हाट ए कॉमा 0। तो ये पॉइंट्स आपके पास हो गए गाइस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा आर एस है दैट मीन्स जो बी है मेरा, ये जो ऑल्टीट्यूड का ये आर एस का डिस्टेंस है कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर एस इज इक्वल टू √3, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन कंडीशन मेरे पास एक और है कि जो मेरा पी एस है वो किसके बराबर दे रखा है, वो क्यू आर के बराबर दे रखा है। ये गिवन कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। और क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जो पी एस की वैल्यू मिल जाएगी। इस फिगर से आप देख सकते हैं, फिगर से मेरी पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 0, क्योंकि पॉइंट पी 0,0 पे है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। तो इसकी जगह आपका पॉइंट आ जाएगा गाइज यहाँ पे a माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे +3। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस अब हमें क्या करना है, पीआर की वैल्यू निकालना है। तो मेरी पीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीआर इज इक्वल टू व्हाट, माय पीआर इज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। आप यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से पीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास है, a की वैल्यू अभी मैंने निकाली 2 आ रही है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये आर एस जो है यही क्या है मेरे बी के बराबर है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3 हो गया। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 7। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 12. A 100 marks examination was administered to a class of 50 students despite only integer marks being given. The average score of the class was 47.5, than the maximum number of students who would get marks more than the class average is. Option A 25, option B 35, option C 45 and option D is 49. So guys, here answer D is correct, which is 49. So let's begin with the question. First of all, we'll see the condition that your total marks of student is given. Total students are 50 and average score of that 50 students will be 47.5. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो टोटल मेरा मार्क्स है, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा मेरा 50 स्टूडेंट्स के लिए इनटू एवरेज कितना है 47.5. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू योर 2375. ओके, नाउ इफ 48 स्टूडेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय these students, if 48 marks are obtained by these students, okay, then the maximum number of student can be, if the condition is what, if 48 marks obtained by the student, so it will be equal to what, it will be equal to your total marks is 2375 divided by 48, which is equal to your 49.479. okay, so your average score of the class or average class average is what, so you have to calculate that your mean number of students are how much. So your mean number of students will be mean number of student
will be what? Your mean number of student will be equal to 49. Okay. So here option D is the correct answer. Question number 13. Let S be the sum of digits of the number 15 square into 15 की power 18 in base 10, then your option A is S is less than 6, S is greater than equal to 6 or less than 140, S is greater than equal to 140 and less than 148, and option D is S is greater than equal to 148. So guys, here option B is the correct answer, which is S is greater than equal to 6 and less than 140. So let's begin with the question. So your n is equals to what? Your number is here. Your number is what? Your number is 15 का square into 15 की power 18. Or this can be written as what? This can be written as 3 पे power 2 into 5 पे power 20. Or you can write it as what? 10 minus 1 into 2 पे power 20, okay, into 5 पे power 20. ऐसा लिखने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे क्या लगा देंगे? 2 की पावर 20. ऊपर नीचे 2 की पावर 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा जो n का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n विल बी इक्वल्स टू व्हाट? योर 10 minus 1 into 10 की पावर 20. ये कंबाइन हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 2 की पावर 20 विच इज 1024 into 1024. इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 21 माइनस 10 की पावर 20 अपॉन 1024 into 1024. ठीक है. सो नंबर ऑफ डिजिट इन n. सो योर नंबर ऑफ digits in n will be less than 16. It means the number of digit in n is equal to 15. So if all the digits will be 9, then also maximum sum is, so if all the digits, if your all the digits will be 9, then your maximum sum is 135. Then your maximum sum is 135. So here you can conclude that your S will be what? Your S will be greater than equal to 6 and less than your 140. So this is how your answer becomes, that is S is greater than equal to 6 and less than 140. Question number 14. Let PQR be an acute angle triangle in which PQ is less than QR from the vertex Q. Draw the altitude Q. Q1 the angle bisector of Q. Q2 is the median of Q, and Q3 with Q1 where Q2, Q3 lying on PR. Then your option A is PQ1 is less than PQ2 is less than PQ3. Option B is PQ2 is less than PQ1 is less than PQ3. And our option C is PQ1 is less than PQ3 is less than PQ2. And your option D is what? PQ3 is less than PQ1 is less than PQ2. Here guys, option A is the correct answer, which is PQ1 is less than PQ2 is less than PQ3. So let's begin with the question. सबसे पहले हम देखेंगे कि डायग्राम PQR एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ PQR का. So इस तरीके से मैं एक डायग्राम बना लूंगी यहाँ पे. तो यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, दिस इज माय Q, ये मेरा Q हो जाएगा. ठीक है. अब मुझे कंडीशंस के अकॉर्डिंग डायग्राम फुलफिल करना है, तो Q आपकी वर्टेक्स से यहाँ पे मैंने बना दिया. ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड Q. Q1 एक एंगल बाइसेक्टर है, Q से Q1 बनाया विच इज एन एंगल बाइसेक्टर. सो दिस इज Q1, एक एंगल बाइसेक्टर हो गया. नेक्स्ट
Q2 and the median Q. Q2 is the median. So Q2 को इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे. Where Q3 is what? Q3 lying on PR. Q3 is also lying on PR. तो ये Q3 हो गया. ठीक है, ये एंगल P और ये एंगल R आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. So the condition is what? Here PQR एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जहां पर PQ जो है आपका वो क्या है? लेस देन QR है. तो इस कंडीशन से, इस डायग्राम से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट योर PQ1 is less than PQ1 is less than your PQ2 which is less than PQ3. इस डायग्राम से आप इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज योर PQ इज लेस देन दिस QR साइड. ठीक है, सो इससे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ जो मेरा PQ1 है वो लेस देन हो जाएगा PQ2 के और वही लेस देन हो जाएगा PQ3 के. तो डायग्राम से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज को. तो ये हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. All the vertices of a rectangle are of the form of a comma b with a b integers satisfying the equation a minus 8 का whole square minus b minus 7 का whole square is equals to 5. When your perimeter of the rectangle is what? Option A is 20, option B is 22, option C is 24 and option D is 26. So here guys, option A is the correct answer which is 20. So let's begin with the question. So guys, given condition is what? Given condition is the equation which is your a minus 8 का whole square minus b minus 7 का whole square equals to 5. So this is the given condition. You can also write it as a square minus b square which is equal to what? Your 5 of, in bracket, a point is what? A minus 8 and your b point is what? Your b minus 7. So let's have a look. एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं so that हमें एक रफ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमारा प्लेन है जहां पर हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. ये जो पॉइंट हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा? 5,0. ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा B, वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ से. यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा जो A आ जाएगा वो क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे +-3 आ जाएगा. इसे मैं सॉल्व करूंगी B को तो B की वैल्यू आ जाएगी +-2. तो मेरा जो स्मॉल a होगा वो क्या हो जाएगा? 11 और 5. और मेरे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 9,5. ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं तो यहाँ पे मैं प्लेन पे रख दूंगी. दिस विल बी 11-5. मेरी जो c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11,9. और मेरे d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 5,9. तो ये एक आपका रेक्टेंगल का केस हो गया यहाँ पे. ठीक है, और ये आपका O पॉइंट हो गया. तो आपको फाइंड क्या करना है गाइज? यहाँ पे आपको यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? पेरीमीटर इज व्हाट? योर पेरीमीटर इज 2 into L plus B. Fine. So 2 as it is. Your length is what? यहाँ पर आपकी जो लेंथ हो जाएगी गाइज वो कितनी हो जाएगी? वो 6 हो जाएगी. और जो आपकी ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पे 4 हो जाएगी. ठीक है, and this will be equal to what? This will be equal to your 20. So guys, option A is the correct answer of this rectangle. Question number 61. What is the sum of all natural numbers n such that the product of the digits of n in base 10 is equal to n square minus 10n minus 36. Option A is 12, option B is 13, option C is 124 and option D is 2612. So guys, here option B is the correct answer which is 13. So let's begin with the question. So सबसे पहले हम देखते हैं कि conditions हमें क्या दे रखी हैं. So let the product of digits of n be Pn. जो प्रोडक्ट है उसे हमने क्या मान लिया? यहाँ पे Pn मान लिया. तो हम क्या लिख सकते हैं कि let योर Pn, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपका जो Pn है गाइज वो क्या हो जाएगा? मेरा जो Pn की वैल्यू है which is less than or equal to this n.
ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ये नोट करने वाली चीज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेरा जो n हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको मैं लिख सकती हूँ am 10 की पावर m प्लस a m माइनस 1 10 की पावर m माइनस 1 अप टू व्हाट, अप टू a0। ये kp की टर्म मैंने लिख दी पॉलिनोमियल की तरह, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये मेरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी एक m और 10 की पावर m से। और मैं क्या लिख सकती हूँ, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर m, सॉरी am 9 की पावर m। इस तरीके से गाइस इसे लिखा जा सकता है एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ये हो जाएगा am माइनस 1 अप टू व्हाट, ये कहां तक चलेगा, ये हमारा चलेगा a0 तक एंड विच इज इक्वल टू व्हाट योर pn, ठीक है। नाउ मुझे n स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, n स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 36 जो कि लेस देन और इक्वल टू है हमारे n वैल्यू के। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस 11n, n को मैं इधर शिफ्ट कर लूंगी, 11n माइनस का 36 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी जो n की वैल्यू आएगी गाइस वो किसके बीच में लाई करेगी, वो लाई करेगी n इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2.64 एंड विच इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 13.64। सो यहां से मैं अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू को क्या रख सकती हूँ गाइस, यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये वैल्यू हो जाएगी ये -3 विच इज लेस देन और इक्वल टू n विच इज लेस देन यहाँ पे 14 के बराबर हो जाएगी, ये सिर्फ लेस देन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास एक और कंडीशन गाइज यहाँ पर आ रही है, वो क्या कंडीशन है हम देखते हैं उसे। कंडीशन इज योर pn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो आपका pn है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो मेरी इक्वेशन थी n स्क्वायर माइनस 10n माइनस का 36 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। और मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये मेरा n माइनस 5 का होल स्क्वायर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। इसे ऐसा लिखा जा सकता है गाइज। उसके बाद में क्या कर सकती हूँ कि जो मेरी n की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के वो क्या हो जाएगी, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी 12.81। दिस इज माई इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं यहाँ से और वहां से दोनों से, अगर मैं कंबाइन एक n की वैल्यू का कंक्लूजन निकालूं तो गाइज मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम 1 and 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से मेरे को n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 13। सो हियर गाइज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज 13। Question number 62. Let m respectively comma n be the number of 5-digit integers by using the digit 1, 2, 3, 4, 5 with repetitions in bracket respectively or without repetitions such that the sum of any two adjacent digits is odd. Then your m by n ratio is equal to what? Your option A is 9, option B is 12, option C is 15, option D is 18. So guys, your option C is the correct answer which is 15. So let's begin with the question. So when repetition is allowed, so what you can say कि when repetition is allowed, so first condition is what, your when your repetition is allowed. So you have how many ways? M is equals to what? Here I have to draw a block like this. So 1, how many integers are there? 5, 1, 2, 3, 4 and 5. So यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपका 2 एडजेसेंट डिजिट इज ऑड होनी चाहिए, सम ऑफ 2 एडजेसेंट डिजिट का। अगर यहाँ पे मैंने लिया 2 एक इवन नंबर तो यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं लूंगी 2 क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फिर मैं 3 लूंगी, अगेन यहाँ पे मैं 2 लूंगी, ठीक है। तो ये मेरा इवन नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 72। ये कंडीशन कब है, जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर मेरा क्या लिया, इवन नंबर लिया। ठीक है, अगर मैं वहीं पर बात करूं कि ये जो मेरा नंबर है अगर मैं ऑड नंबर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइज कंडीशन क्या दे रखी है कि जो m है वो रिस्पेक्टिवली कॉमा दिस n बी द नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स जो ऑब्टेन होता है इन्हीं 5 डिजिट्स को यूज करके रिपीटेशन के साथ और विदाउट रिपीटेशन के साथ। तो जो सम होगा एनी टू एडजेसेंट डिजिट्स का वो ऑड होना चाहिए, ये हमारे पास एक कंडीशन है। तो अगर मैं बात करूं कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, या रिपीटेशन तो हमारे क्वेश्चन में अलाउड ही है, तो जो सेकेंड कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी कि यहाँ अगर मैं ऑड वैल्यूज कंसिडर कर लूं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरी ऑड नंबर आ जाता है पहले, तो ऑड नंबर अगर मैं 3 लेती हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली बात है कि इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये पहला केस ये ऑड हो गया। अगेन मेरे पास एक ऑड नंबर आएगा, फिर अगेन एक इवन आएगा, फिर अगेन एक ऑड आएगा। मुझे सिचुएशन क्या बैलेंस करनी है, मुझे बैलेंस करना है कि यहाँ इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इस दोनों कंडीशंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारे m की वैल्यू आएगी वो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आपको आइडिया लगाना है। तो यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों ही सिचुएशंस को ऐड कर दिया, यानी इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू, मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप ऐड करके देखें तो मेरे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 प्लस 108 विच इज इक्वल टू व्हाट योर 180। सो m की वैल्यू हमें आ चुकी है, हमें मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं हो देन हमारी कंडीशन क्या होगी। फॉर दैट उसके लिए भी हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि व्हेन योर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन your repetition not allowed। अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है तो फिर देखिए हमारे पास इंटीजर्स वही 5 इंटीजर्स है, तब हम उन्हें अरेंज करते हैं किस तरीके से, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन्हें अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, ये मेरे n की वैल्यू निकलेगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर पहली डिजिट अगर मैंने ऑड डिजिट ले ली, अगर ये पहली डिजिट मेरी ऑड है तो दूसरी ऑब्वियसली बात है इवन आएगी, क्योंकि कंडीशन तो वही है कि एडजेसेंट जो डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, मेरा ऑड ही होना चाहिए। अगेन अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक इवन, यहाँ पे फिर लिया 1 और यहाँ पे फिर क्या बच गया 1, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। 3 2 2 1 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया, तो यहाँ पर वैल्यूज को रखा, तो अब क्या होगा कि मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए n की कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है कि क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे कि जो m है रेस्पेक्टिवली और n है दोनों ही नंबर्स है 5 डिजिट के, जो कि ऑब्टेन होते हैं इन डिजिट्स को यूज करके 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली with repetition or without repetition such that the sum of any two adjacent digit is odd। तो कोई भी adjacent digit का जो सम है वो odd हो जाएगा। वो किस कंडीशन पे है, हमारी रिपीटेशन वाली कंडीशन पे। बट अगर विदाउट रिपीटेशन है तब हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर मैंने ऑड लिया है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3 2 जा 6 2 जा 12। So guys here we have to find only the ratio of m upon n। तो m की वैल्यू हमारी आ गई थी 180 और n की वैल्यू हमारी आ गई थी 12, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर मुझे मिल जाएगी जो रेशियो है वो क्या मिल जाएगी 15। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द नंबर ऑफ सॉलिड कोन्स विद इंटीजर रेडियस and height each having its volume numerically equal to its total surface area is what? Option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is infinite। So guys here option B is the correct answer which is 1। So let's begin with the question। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशन में क्या दे रखी है, R और H तो दो वैल्यूज है वो मुझे क्या दे रखी है, R और H आपके क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है। ओके
and your volume 1/3 pi r square h is equal to what? your cone का सरफेस एरिया प्लस आपका बेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड कोन का। नाउ L हमें पता है कि L क्या होता है, L इज व्हाट? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करने पे गाइस यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि माई आर एच इज इक्वल आर एच माइनस, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, आर एच माइनस 3r इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैं दोनों ही साइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं, बाय एस बी एस मीन्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6HR, और विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू योर 9r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है गाइस। यहाँ पर मेरे r की जो वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा मेरा h माइनस 6 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 9h अपॉन योर h माइनस 6, और इट कैन बी रिटन एज व्हाट, 9 प्लस 54 अपॉन h माइनस 6। सो हियर h, जो हम r की बात कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पर r शुड बी एन इंटीजर फॉर विच देयर एग्जिस्ट only one solution which satisfying the above condition is what, your h is equals to 8 and your r is equals to 6। so कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर h is equals to 8, एक ही कंडीशन होगी, और r is equals to क्या हो जाएगा, 6। so guys here option B is the correct answer, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसी कंडीशन आ रही है। Question number 64. Let ABCD be a square and arc of a circle with A as a center and AB as a radius is drawn inside the square, joining the points B and D. Point P on AB, point S on AD, Q and R on arc BD are taken such that PQRS is a square. Further, suppose that PQ and RS are parallel to AC, then the area of PQRS upon area of ABCD is what? Option A 1/8, option B 1/5, option C 1/4 and option D 2/5. So guys here option D is the correct answer. So सबसे पहले गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ABCD इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हमारे पास हो जाएगा एक स्क्वायर यहाँ पे। सो दिस विल बी योर y एक्सिस और दिस विल बी योर x एक्सिस, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है हमारे पास, so this is A, this is your B, this is your C and this is your D। AB पे P पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट S है हमारे पास, ठीक है, एक सेमी सर्कल, एक कर्व हमारे पास इस तरीके से है। P से हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे R पॉइंट को, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, इस तरीके से एक स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज PQR एंड S। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ओरिजिन पे है तो ये इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे, आपके एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे B,0 हो जाएंगे। यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट आपके A,0 हो जाएंगे। यहीं पर अगर आपके मैं बात करूं बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास 0,A, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी गाइस। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती है आर की, बाय सिमेट्री से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिमेट्री से अगर मैं बात करूं तो सिमेट्री से क्या हो जाएगा, मेरा जो AP है वो AS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन हमें सबको पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कि अपनी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं सिर्फ पॉइंट R की बात करूं, यहाँ पे पॉइंट R की अगर बात की जाए तो गाइज यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, x माइनस बी अपॉन cos 45, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू योर b रूट 2 हो जाएगी।
अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी एक्चुअली में क्या है, दिस इज कॉल्ड योर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड योर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइन, सो आफ्टर दैट अब यहाँ से हमें x की वैल्यू गाइस क्या मिल जाएगी, योर x विल बी व्हाट, योर x विल बी कैन बी रिटन एज b प्लस बी विच इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, और यहाँ पर जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 प्लस b विच इज इक्वल टू योर b, ये y आपका 0 प्लस b विच इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद अब हमें ये x और y की वैल्यू मिल गई है, तो हम इसे सर्कल की इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अगर मैं इसे इक्वेशन में रखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, अगर ऐसा मैं रख देती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, तो हमारे पास b स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे ये √2 का b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास गाइस यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू आपकी, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2/5। और मैं क्या बोल सकती हूँ गाइस, यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि ये आपका जो वैल्यू है ये आपका 5a स्क्वायर, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है देखिए, ये आपकी जो वैल्यू आ रही है √2b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आपकी 5b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी b/a की। ठीक है, ये वैल्यू आपके इक्वल आ जाएगी 2/5, एंड दिस इज व्हाट योर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQRS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 65, सपोज ABCD is a trapezium whose sides and the height are integer and AB is parallel to CD. This is the condition, and if the area of ABCD is 12 and the sides are distinct, then mod AB minus CD is what? So option A is 2, option B is 4, option C is 8, and option D is cannot be determined from the data. So guys, here option D is the correct answer, which is 4. So let's begin with the question. सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे, तो हम ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये एक ट्रेपीजियम हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे जो मेरा D हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0,h, यहाँ पर मेरा A हो जाएगा 0,0, मेरा B जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा A,0, एंड माई C इज व्हाट B,H। ये एक ट्रेपीजियम हो गया, जहां पर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू इट्स हाइट विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे गिवन है हमें 12। ABCD का एरिया क्या गिवन है, एरिया का फॉर्मूला 12, यहाँ पर ABCD 12 गिवन है, तो एरिया इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ओके, नाउ A प्लस बी यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस बी इज व्हाट 24/h, लिख सकती हूँ उसको मैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद मेरा जो BC हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मेरे H की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी जब मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो BC है, अगर मैं इसमें रख दूं ये वैल्यूज, तो मेरा BC कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में, अगर आप देखें तो A मतलब 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहाँ पर जो H है वो क्या है मेरा 3 का स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, यानी BC मेरा 5 आ गया, तो जो मेरा मॉड A माइनस B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विच इज